Okay, yeah, yes, we are live now. Yes, you can request. Hi. I think there is some network glitch. Sorry for the issue. Yash is joining the live, and I think, yeah, we have the request. Whether it's working now or not. Yeah, I guess. Hi, Yash, I can hear you. Yeah, hey, can you hear me? Yeah, Yash, I can hear you. I can't see your face, though. Just a second. I don't know why it is glitching again. Just a moment. Now is it working? Can Yeah, you see? now it's working. Now it's working. Great, yeah. Okay, I think you can move your camera a bit up. I think there is the top side of your head is just dropping out of the frame. So, Yeah, I yeah, apologize. I hope I'm clearly visible and audible at the moment. yeah, it's clearly visible Working cool? now. Great, great. It's working cool. Right, And right. apologies for I the hope network issue. I don't know why the app was glitching today, but in any case, glad to have the audience connected with us already. right. Great, amazing. So, yeah. So, yeah, are we good to go? Absolutely, absolutely. Great, And glad to amazing. be here. So amazing. Thank you so much. Yes, it's also from Financial Aware Bharat side. We are also glad to have you. Okay, let's start the session. So, hi everyone. I am Aman Agrawal, a final year student at IIT Kanpur, and today we have with us Mr. Yash Tiwari. Mr. Yash has delivered 6 TED Talks and a Juice Talk, and is an international youth an international record holder, a mental health awareness advocate, an award-winning author of 2 books, and also a public speaker. He has been awarded with multiple awards and titles like 100 Most Influential People of India 2020, Youth Influencer of the Year 2021, Top 100 Inspiring Author of India by the Indian Awaz, and many more. He was also awarded with Global Young Leader Fellowship and TCC Rex Karamveer Chakra Award by Incogno in association with United Nations. It is a pleasure to have you here, sir. So, yeah, how are you feeling? Thank you so much, first of all, for such a warm welcome. And yeah, thank you so much for enumerating all of the accolades because I always consider the fact that perhaps there shouldn't be any limitation as such in regards to how young they are to achieve all that they want to achieve. That is the ideology with which I have always worked because I started working, of course, when I was 16 years old, as I've Correct. mentioned about it time and again in my interviews. So, Hmm. to have the mention of all of this, this is, of course, a message for our audiences over here as well, the youngsters who are listening to us and who will be listening to us, to follow their dreams, be passionate about it, and not consider their age as an obstruction as such in the pathway whatsoever. And in regards to the Right. second question, definitely feeling very glad to be here. Thank you so much. I think right before the start of the session, we had a vibe from you that why your description was so long and there were so many things I have to say about you. Right. So yeah, we are glad to have you here, sir. So okay, so we'll try to keep it quite light and थोड़ा हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे so that we can बिल्कुल cater बिल्कुल our श्योर audiences. Right. एब्सोल्युटली So यश तो यश अपने आप जर्नी के बारे में बताओ बिकॉज आई हैव सीन योर लिंक्डइन बहुत सारी चीजें थी या एंड आई वांट टू लिसन इट फ्रॉम यू एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तो जैसा कि अभी थोड़ा सा मैंने बताया है कि आई स्टार्टेड इन दिस जर्नी व्हेन आई वाज 16 इयर्स ओल्ड बेसिकली सीन ये था कि 11th के एग्जामिनेशन चल रहे थे फाइनल एग्जामिनेशन चल रहे थे 12th बस शुरू होने वाली थी ऑल ऑफ अस आर अवेयर कि हमारी कंट्री में तो जो 12th बोर्ड की प्राथमिकता होती है जो इम्पोर्टेंस होती है दैट इज beyond anything in काफी comparison. So of course it was ट्रू something which not pressurizing per se, but it was very prominent for me as well as anybody in my age group in my cohort back then. Now I realized one thing very clearly at that particular age. I had just turned 16 years old. I was up in my 12th standard. I was also elected as the head boy of my school. And I realized that I want to do something in the field of my passion. यानी कि जिस फील्ड की तरफ सच में एक रुचि है जिस फील्ड की तरफ सच में रुझान है उस फील्ड में कुछ करना है उस फील्ड में एक कदम उठाना है इवन इफ द एज इज वेरी यंग राइट नाउ इवन इफ देयर आर dozens of other things to be taken care of academically more importantly back then but बस
ये मन में ठाना था कुछ ऐसा करना है विच इज वेरी मच नेक डीप इन द फील्ड ऑफ माई इंटरेस्ट एंड पैशन। और उसी इंक्लिनेशन के साथ एज वेल एज वेरियस अदर इंस्पिरेशन अपनी पहली किताब लिखना शुरू की थी 16 साल की उम्र में, जिसका नाम था अ सेलिब्रेशन ट्रिबुलेशन, जो कि 22 दिन के रिकॉर्ड टाइम के अंदर मैंने लिखी थी। एंड दैट बुक ऑफ माइन एक्चुअली वेंट ऑन टू रिसीव अ लॉट मेनी अवार्ड्स एंड अक्लेम्स एज वेल, सम ऑफ व्हिच यू आल्सो मेंशन्ड अर्लियर, फॉर व्हिच आई एम वेरी हम्बल्ड एंड ग्रेटफुल, आई हैव टू से। फिर उसके बाद लिखी थी 18 साल की उम्र में अपनी दूसरी किताब, जिसका नाम था पैंडेमिक 2020 राइफ ऑफ द वायरस, जो कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे कि हमारे कई सारे व्यूअर्स को पता भी होगा, ये विश्व की पहली फिक्शन नॉवल थी जो कि कोरोना वायरस पर लिखी गई थी। द फर्स्ट फिक्शन नॉवल टू एवर बी रिटन ऑन द कोविड-19। आई ऑथर्ड इट व्हेन आई वाज 18, और साथ ही में ये भी 30 दिन के रिकॉर्ड टाइम के अंदर लिखी थी। एंड ऑफ कोर्स इस बुक को लेकर एम ये था कि जो कोविड, विच इज समथिंग जिससे हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं इन सम और द अदर कैपेसिटी, पढ़ाई करते हुए स्टूडेंट्स को तो बहुत ही अच्छे से पता होगा कि कोविड का क्या असर पड़ा है उनके एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जर्नीज पे। तो इस कोविड के दौरान जो वॉरियर्स एंड सफरर्स रहे हैं कोविड-19 के अराउंड द वर्ल्ड, उनको एक ओमाज, उनको एक ट्रिब्यूट पे करते हुए एक कहानी लिखी थी। एंड yes, like you mentioned, I have delivered multiple tech talks and Josh talks as well. विश्व भर के ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे ग्लोबल ऑडियंसेस को गाइड और मेंटोर करने के लिए बुलाया जाता है अबाउट वेरियस टॉपिक्स लाइक बिल्डिंग अप कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग, फाइंडिंग अ पैशन इन योर लाइफ। जैसे कि आज के डिस्कशन में हम लोग भी बात करने वाले हैं कि अपने लेटेंट पोटेंशियल्स को कैसे अनलॉक किया जाए। तो इन्हीं सब के बारे में एंड वेरियस अदर एवेन्यूज ऑडियंसेस को अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ गाइड करता हूँ, मेंटोर करता हूँ, एंड वेरियस क्रिएटिव एवेन्यूज से हमेशा ही खुद को अलाइन रखता हूँ और रखे रहूंगा, because that is what I feel I'm made for, to channel my voice and words for the greater good and to create that impact. Right. So this is I want to ask this thing. So you said that you wrote, so you have written your first book when you were 16, right? Yes. So what was like, as you mentioned that you wanted to pursue your passion and you wanted to do so many things, right? Not just to focus towards your academics. So how basically, because say for example, if you're doing something, we have an example. Okay, this person is doing at this age, so I'll do that at age. So being a 16-year-old boy, I think it's quite hard to find a idol who is 16 or 17 and writing books. So how But difficult was that I at that see, time? one of my agendas always is to be that example. One of my agendas Okay. and inspirations is always to be the one who is setting the example, who is basically stating it very matter of factly कि आपको बस फोकस करना है अपने एम्बिशंस के ऊपर, आपको बस फोकस करना है अपने इंक्लिनेशंस, अपने पैशंस के ऊपर। जर्नी वहीं से शुरू हो पाती है, क्योंकि मैं देखता ही हूँ, मैं आपको बहुत ही मैटर ऑफ फैक्टली बता सकता हूँ कि यंगस्टर्स को व्हेन आई गाइड एंड मेंटोर इन माय सेशंस एंड वर्कशॉप्स, तो भले ही वो इंडिया के यंगस्टर्स हो, किसी कॉलेज के या स्कूल के, या फिर वो किसी और कंट्री, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं और के यंगस्टर्स हो जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ या मेंटोर कर रहा हूँ, एक सेशन में एक चीज जो कि हर जगह पे कॉमन रहती है विदाउट द बाउंडेशंस और द बाउंड्रीज ऑफ द रीजनैलिटी या कंट्री, वो ये है कि यंगस्टर्स अपने आप को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। वो अपने आप को बहुत ज्यादा इस संदर्भ में कह सकते हैं कंटेन करके रखते हैं कि अरे यार अभी उम्र बहुत कम है। या इससे भी बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये चीज करने की उम्र है भी कि नहीं, अभी अपने पैशंस को फॉलो करने की या उनके पैशंस को फॉलो करने की उनकी उम्र है भी कि नहीं। ये जो कहीं ना कहीं स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट होता है ना कि आपको 18 साल तक अपना स्कूल कंप्लीट करना ही है, आपको 25 साल तक जो है बैचलर्स और मास्टर्स कंप्लीट करना ही है व्हाटसोएवर, उसके बाद एक अच्छी सी 30-40 की जॉब हो जानी चाहिए, इट शुड बी अ हैंडसम पैकेज दैट यू आर रिसीविंग एज वेल, व्हिच इज व्हाई कुछ बहुत ही स्पेसिफिक डिग्रीज की तरफ भी वी सी मेजॉरिटी ऑफ यंगस्टर्स ट्राइंग टू रन अवे, इवन अगर उनको उसकी तरफ एक कन्वीनियंस नहीं फील होता या इंटरेस्ट नहीं फील होता। एंड देन ऑफ कोर्स बाय द एज ऑफ 30 एक अच्छी खासी फैमिली होनी चाहिए एंड यू शुड बी सेटल्ड इन लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आइडियोलॉजी गलत है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये आइडियोलॉजी हर किसी पे अप्लाई करे, दैट इज नॉट अ नेसेसिटी। कोई ऐसा भी यंगस्टर हो सकता है जो कि 16 साल की उम्र में अपनी जर्नी को शुरू करके बाय द एज ऑफ 23-24 ही एक बिलियनियर ट्रिलियनियर बन गया है एंड दे आर एबल टू स्टार्ट देयर फैमिली इवन एट दैट एज एज वेल। मैं मैटर ऑफ फैक्टली इस बात को कह रहा हूँ, they are not worrying about that job finding वाला prospect या interviews का prospect because they focused on the fact कि हर किसी की जर्नी अपने हिसाब से यूनिक हो सकती है।
तो मेरा हम्म, हमेशा एक जो एम रहता है अपने सारे प्रोजेक्ट्स में, अपने सारे एंडेवर्स में, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ भी होता है कि वन हैज टू बी वेरी मच, वी कैन से, अवेयर, रिस्पेक्टफुल हम्म, एंड अप्रिशिएटिव ऑफ हु दे आर एज अ पर्सन, यानी कि अपनी यूनिकनेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपने यूनिक पोटेंशियल्स की तरफ भी अप्रिशिएटिव होना, और अपने हम्म, आप को ये कहना कि कर सकते हैं यार, उम्र कम क्यों ना हो बट अभी भी कुछ कर सकते हैं, कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस मैसेज को प्रीच करने की तरफ भी हमेशा ये प्रयास लगा रहता है, और हमेशा प्रयास लगा भी रहेगा थ्रू ऑल द क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स दैट आई वर्क ऑन। right, right, okay. वही, I think I can just take out that conclusion uh, कि कर सकते हैं, right? बिल्कुल। मतलब आपने जो इस चीज को ऐसे कहा कि हम बहुत ज्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बहुत बार वी आर लाइक कि comparisons के वजह से we are not able to focus on that, even if we are able to do that, but it's like because of the existing things we are able to sort of not convince us for that, right? Okay, great. So let's try to now discuss, yes, something on the topic of today's life, and which is the Absolutely. latent potential of today's youth. So what do you feel key, like specifically talking about India, right? So India is considered to be as a youth nation, and what do you feel key, why, like I have seen in my friend circle also and in multiple colleges, so they are they have that potential, but they're not able to just get that full out of them. So what do you think are the primary reasons for that? वेल इसका एक सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ, अगर सिंपलेस्ट ऑफ कारण हम लोग कोट कर सकें, बिकॉज आई डोंट वांट टू कीप दिस कन्वर्सेशन वेरी कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म्स में अगर मैं कहूँ, Hmm. तो सबसे बड़ा कारण तो यही होता है कि majority ऑफ यंगस्टर्स आर नॉट दैट मच इंट्रोस्पेक्टिव, और दे आर जस्ट Hmm. टू रिलक्टेंट अबाउट इंट्रोस्पेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ हु दे आर। Hmm. जैसे कि अगर मैं ये बात कहूँ, आज के सेशन में we are talking about things like unlocking your latent potentials, Hmm. figuring out your capacities, strengths, passions and stuff like that. But आप मुझे खुद ये बताओ, रेगुलर बेसिस पे कितने ही यंगस्टर्स होंगे जो कि इवन 5 मिनट भी निकाल के अपने साथ बैठ के इन अ वेरी मेडिटेटिव मैनर, इन अ वेरी इंट्रोस्पेक्टिव मैनर ये एनालाइज करते Hmm. हैं कि आज के दिन में वो अपनी कौन सी स्ट्रेंथ को चैनल कर पाए, आज के दिन में अपने कौन से पोटेंशियल्स को वो रियलाइज कर पाए, आज के दिन में अपने कौन से कैपेसिटीज को वो कह सकते हैं अनलॉक कर पाए। एक बहुत बड़ा कारण ही Hmm. ये हो जाता है कि अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले बात Hmm. कर रहे थे कि एक जो स्टीरियोटिपिकल पाथवे होता है ना, कि आपको इस एज तक स्कूल खत्म करना है, इस एज तक कॉलेज खत्म करना है, इस एज तक जॉब चाहिए है, ये जो स्टीरियोटिपिकल Hmm. पाथवे है, ये Hmm. हमारे यंगस्टर्स को, हमारे युवाओं को इतना ज्यादा कह सकते हैं एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज बट एट टाइम्स, रिस्ट्रिक्ट करके रख देता है कि उसके बियॉन्ड वो सोचने का प्रयास ही नहीं करते। अब आप मुझको ये बताओ कि अगर आप ही जैसे हैं, आप अगर सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पे फोकस कर रहे हैं कि आपको डे और नाइट सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की पढ़ाई करनी है, हाइपोथेटिकली Hmm. स्पीकिंग आपका एग्जाम है इन 10 days, 10th डे पे आपका फिजिक्स का एग्जाम है, 11th डे पे आपका केमिस्ट्री का एग्जाम है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और आप कहते हो कि नहीं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की पढ़ाई करनी है, फॉर द इंटायरिटी ऑफ द नेक्स्ट 10 days यू आर ओनली फोकसिंग ऑन दैट सब्जेक्ट। अब Hmm. बात ये है कि 11th डे पे केमिस्ट्री का भी एग्जाम होना है, बट आपने इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं किया कि बियॉन्ड दैट स्पेसिफिक एवेन्यू और डायमेंशन और दैट Hmm. एग्जाम कुछ और भी उसके आगे Hmm. होता है, कुछ और भी उसके आगे स्केड्यूल्ड है जिसके लिए प्रिपेयर्ड होना जरूरी है। तो ऐसे में Hmm. होगा क्या कि माइंड सिर्फ एक ही एग्जाम तक फोकस रहा, प्रेपरेशन सिर्फ एक ही एग्जाम की हो पाई, वो भले ही आप अच्छे से कर पाओ चाहे ना कर पाओ, लेकिन उसके बाद वाला जो है वो तो गारंटीड आपने बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया ना। जिंदगी में भी कहीं ना कहीं ऐसे ही होता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये सोच रहे हो कि स्कूल अच्छे से निकल जाए या कॉलेज अच्छे से निकल जाए या जॉब अच्छी से मिल जाए, लेकिन आप सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे हो, इन बातों पे फोकस करना या ना करना इज नॉट द डिस्कशन, बट सिर्फ इन्हीं बातों पे फोकस करना कई बार प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, Correct. बिकॉज इफ यू आर स्पेंडिंग डे एंड नाइट जस्ट क्रैमिंग अप द नोट्स फॉर Hmm. योर मिड सेम्स और योर एंड सेम्स, और आप ये सोच भी नहीं रहे हो Hmm. कि इस पूरे दौरान आपकी मेंटल हेल्थ की बिल्कुल बजे जा रही है, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो बिल्कुल पानी में डूबती जा रही है, तो होगा क्या कि इवेंचुअली 11th डे पे आफ्टर दैट एग्जामिनेशन जब इन सब चीजों को फेस करने का कह सकते हैं सिचुएशन आएगा, अपनी हेल्थ को Hmm. देखने का, अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग को देखने का, अपने पैशंस और पोटेंशियल्स को देखने का, वहां पे यू विल फील चैलेंज्ड, वहां पे यू विल Hmm. एक्चुअली फील अ बिट Correct. कॉन्फ्लिक्टेड कि अब क्या करें, बिकॉज इस एग्जाम की
की प्रिपरेशन कर ली थी बट दूसरे की नहीं कर पाई थी. सो आई थिंक दैट समहाउ आंसर्स द क्वेश्चन कि हम लोग कहते हैं कि यस यंगस्टर्स के पास पोटेंशियल बहुत है बट अनलॉक वो क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज दे आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, दे आर नॉट इवन एक्नॉलेजिंग correct. दैट. एक्नॉलेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है. वो उस बात को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे कि पोटेंशियल्स पे काम करना भी जरूरी होता है, पैशंस को रियलाइज करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. दे आर जस्ट फोकसिंग और एक्नॉलेजिंग और कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फैक्ट कि एग्जाम्स निकालने हैं, जॉब का इंटरव्यू निकालना है, एंड दैट इज प्रीटी मच द एक्सटेंट ऑफ लाइफ, जो कि ऑफ कोर्स प्रॉब्लमैटिक हो जाता है. Yeah. So actually, the thing that you mentioned at the end, कि like exams निकालने हैं and then उसके बाद job का interview निकालना है. So this sort of institutionalization, I think I have seen specifically, I'm in IT Kanpur and I have seen this amongst my friends कि हाँ ये चीज तो है कि हाँ बस जो सीनियर्स ने ट्रेंड सेट कर दिया उस चीज को फॉलो करते Yeah. जा रहे लोग कि वी हैव टू गेट एन इंटर्नशिप एंड देन उसके बाद वी हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट्स एंड देन वी हैव टू टेक अ जॉब. सो अगर किसी बंदे को कुछ और भी करना हो वो नहीं कर रहा है, वो बस वही रोड ले करके उसी पे फॉलो कर रहा है. So yeah, this is I Exactly. think a very big issue. And as you mentioned about that, कि this is not just restricted towards a job वाला thing, but also अगर No. कोई भी different aspect में किसी को काम करना हो या फिर किसी का passion हो, so this affects that also. Absolute. That certainly is the case. Yeah. So, Yash, like we know that goal setting and working towards it needs a huge motivation, right? So, Yeah. how to maintain that constant motivation towards your goal? So bad. I couldn't hear the last part of your question properly. Yeah, I guess there was. Yeah. So what I was saying, ki goal setting and working towards your goal with a dedicated, continuous motivation is quite important. So, but we Good. have seen that this lack of motivation has affected lots of individuals. So, how what one should do in order to have that continuous boost of motivation throughout that period while you're working on your goals? So, what's your opinion on that? Sure, absolutely. तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मुझे कहना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज लाइक अ मेजर प्रॉब्लम. आपको लेट्स से फिर से वही बात उठाते हैं, किसी एग्जाम की Hmm. प्रिपरेशन करनी है. मैं तो कह रहा हूँ एग्जाम पे ही चलिए, आप 2 मिनट को फोकस करिए, वो सबको बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम पे लगता है. Hmm. तो आपका एक एग्जाम है, आपका एक टेस्ट है जिसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर, एंड उसकी बिल्कुल भी आपने पढ़ाई नहीं की है, या सब्जेक्ट से ही आप बिल्कुल अनफेमिलियर हैं, और यू आर जस्ट अ बिट टू लेट्स से एप्रीहेंसिव अबाउट दैट सब्जेक्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्रिकी लगता है. फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल, फिजिक्स को लेकर आपको काफी डर लगता है. अब होता क्या है कि आप लेट्स से फिजिक्स के लिए एक कुछ पोस्टर इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हो, जो कि बहुत ही अच्छे से आपको बूस्ट अप कर देता है. इन दैट मोमेंट यू डाउनलोड दैट, और आप उसको अपने बेड के जस्ट ऊपर लगा लेते हो. कहा जाता है ना कि दैट शुड बी समथिंग जो कि आप अपनी वॉल पे स्टिक करिए, उसी को देखते रहिए, विच इज गुड. इट इज एक्चुअली गुड, इट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. बट प्रॉब्लम ये है कि आप रेगुलरली उस पोस्टर को देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो. आपने पहले दिन देख लिया, आप दूसरे दिन देखने का कष्ट भी नहीं कर रहे, तीसरे दिन तक आप भूल भी गए कि यू बेसिकली स्टक दैट पोस्टर ऑन द वॉल. तो होता क्या है कि द सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज राइट देयर. वो जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअली उस पोस्टर की मदद से आप मोटिवेटेड बूस्टेड अप फील कर सकते हो, बट क्या आप उसको कह सकते हैं प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं उस सोर्स ऑफ मोटिवेशन को? दैट इज राइट देयर ऑन द वॉल, बट क्या आप रेगुलरली एटलीस्ट 2 मिनट निकाल के उसको देख के मेडिटेटिव वे में खुद को एनकरेज करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे जो एक कंसिस्टेंसी ऑफ मोटिवेशन की बात आती है ना, दैट कम्स इनटू प्ले. अच्छा, अब इसका एक और बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडेबल एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में. नाउ आई लव टू गो टू जिम, बट मेरा भी क्या होता है कि कंसिस्टेंट नहीं हो पाता फॉर सम और द अदर रीजन. कई लोग तो एक्चुअली ऐसे होते हैं जो कि साल साल भर की मेंबरशिप लेकर महीने में एक आध दिन को जाते हैं. दैट एक्चुअली बिकम्स द केस, एंड इट इज नॉट इवन बिकॉज ऑफ दे आर कॉट अप इन समथिंग एल्स एंटायरली. इट इज सिंपली बिकॉज कि वो जा ही नहीं रहे. दे हैव आइदर completely forgotten about the fact कि उनकी मेंबरशिप रखी है जिम की, या फिर वो लेजी फील कर रहे हैं. whatever the situation might be, मेरा पॉइंट ये है, आप न्यू ईयर्स के फर्स्ट डे पे रेजोल्यूशन रखते हो कि इस साल तो बढ़िया बॉडी बनानी है, सलमान खान जैसे बिल्कुल बड़े बड़े बाइसेप्स और ट्राइसेप्स बनाने हैं. आप उस मोटिवेशन के साथ जिम की मेंबरशिप ले लेते हो,
पहले दिन जाते हो, दूसरे दिन थक के हाफ एन आवर में आ जाते हो, तीसरे दिन तक आप इतना ज्यादा थक जाते हो कि आप याद तक नहीं दिलाते अपने आप को कि ओके देयर वाज अ गोल विद विच यू स्टार्टेड अ जर्नी. बाय द एंड ऑफ द मंथ तो आपको याद भी नहीं रहता कि देयर वाज अ मेंबरशिप ऑफ अ जिम दैट यू हैव टेकन. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जस्ट बिकॉज ऑन द सेकंड डे यू फेल्ट अ बिट टायर्ड, बाय द थर्ड डे यू जस्ट गिव अप. बाय द फोर्थ डे you decided to forget, and by the fifth day you actually forgot the fact कि आपके पास वहां पे अपने गोल को अचीव करने का, अपनी बॉडी को बिल्डअप करने का, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने का एक मौका सामने ही रखा हुआ है. अब जब हम लोग बात करते हैं आपके क्वेश्चन की, वहां पे भी यही होता है. गोल सेट हो जाते हैं, प्रोजेक्ट जो है पूरे कॉन्सेप्चुअलाइज हो जाते हैं, रिसोर्सेज जो है कलेक्ट अप हो जाती हैं, बट देन जब काम करने की बारी आती है, उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है, भले ही वो एक एग्जाम की प्रेपरेशन हो, या वो एक एडिशनल प्रोजेक्ट हो, या फिर इवन वो अपनी स्किल को बिल्डअप करना हो. आपने डिसाइड किया कि यू हैव एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स गिटार और पियानो, सो यू वांट टू लर्न अबाउट इट, बट द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, द मोमेंट इट becomes a bit difficult, या हल्का सा अगर वो अनकन्वेंशनल हो जाती है, हल्का सा अगर आपको अनकंफर्टेबल लगती है, यू जस्ट डिसाइड टू रेज योर हैंड. तो वहां पे वंस अगेन वही बात आती है कि आप इवन अलाउ तक नहीं कर रहे हो अपने आप को टू रिमेंबर द फैक्ट कि देयर इज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो कि राइट आपके सामने है. राइट. बट वो जो अनकंफर्टेबल फील करने की चीज होती है ना, जो अनकंफर्ट होता है, उसको लेकर बहुत ही ज्यादा एंशियस फील करना या नर्वस फील करना, at times that becomes the barrier in maintaining the consistency. That was the first point. The second point was the fact कि रेगुलर बेसिस पे अपने आप को रिमाइंडेड रखना बहुत ही जरूरी है. इवन ऑन द डेज व्हेन यू आर फीलिंग एब्सोल्युटली टायर्ड, एब्सोल्युटली सोर एंड एब्सोल्युटली जस्ट फीलिंग लाइक लेइंग इन योर बेड द एंटायर डे, बस एक बार अपने आप को याद दिलाओ यार, व्हाई डिड यू स्टार्ट इन द फर्स्ट प्लेस? वो विजन क्या था, जिसके साथ क्या था, जिसको इमेजिन करके पहला कदम लिया था अपने लेट्स से जिम की मेंबरशिप की तरफ, या फिर एक एग्जाम की प्रिपरेशन की तरफ, व्हाटएवर दैट माइट हैव बीन. आई एम नॉट कैटेगराइजिंग की सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, गोल कोई भी हो सकता है, बट उसका एंड रिजल्ट आपने क्या विजुअलाइज किया था, क्या इमेजिन किया था. और फिर अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, क्या वो सिर्फ एक बार जिम जाके या फिर एक बार किताब को खोल के गोल अचीव हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो फिर तो भैया रेगुलरली काम करना ही पड़ेगा. इवन अगर उसमें थोड़ा सा अनकंफर्ट फील होता है, इवन अगर उसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या कह सकते हैं लैक ऑफ एनर्जी फील होती है, जस्ट कीप गोइंग, जस्ट मेक दैट एफर्ट टू गो. शायद वहीं से जो एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी और कॉन्टिन्यूअस फोर्स ऑफ एंथुसियाज्म है, यू माइट बी एबल टू फाइंड इट आउट. राइट. एंड एज यू मेंशन अबाउट कि जो कंसिस्टेंसी होती है, भले आप किसी एक चीज को दिन में 5 मिनट कर रहे हो बट कंटिन्यूसली कर रहे हो, राइट, सो दैट इज समथिंग जो कि बॉडी के मसल्स एंड मेंटली वो अडाप्ट कर लेते कि हाँ, इफ यू विल नॉट डू दैट थिंग आफ्टर few days कि then you'll not be able to, your body is like कि हाँ, you have to do that because you have been doing it from such a long time, so वो अपने आप होने लग जाता है. वो तो फिर एक नेसेसिटी बन जाती है आपकी. Right. That becomes not just a routine, but वो आपकी breathing necessity बन जाती है कि this is what gives you the breath. That is how it happens. Correct. And then just maybe something you can add something on the lines of internal motivation. Like हमने अभी बात किया कि this is something, हमने external results देखे, हमने posters लगा दिया रूम पे. So there is one thing like आप कुछ बताना चाहोगे ऑडियंस को? Absolutely. See, posters वाली बात मैं कहना चाहूंगा कि I am not saying कि मैं उस बात को advocate कर रहा हूँ कि क्या, वो सिर्फ एक hypothetical example में रखना चाहता था. Right. Because that is something which most of the youngsters do. That is something जो कि generally हर कोई करता है, which is something I appreciate. Whatever source of motivation you can find, depend on that, focus on that. अगर वो आपको पॉजिटिवली एनकरेज और बूस्ट अप कर रही है. हाँ, इंटरनल मोटिवेशन की जो आपने बात बताई, ये तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, बिकॉज यहाँ पे फिर वही बात आती है कि आप कहीं ना कहीं वर्ल्ड को एग्जामिन करने से ज्यादा अपने आप को एग्जामिन कर रहे हैं. एक्सटर्नली एक सोर्स ऑफ एनर्जी को ढूंढने से ज्यादा आप ये प्रयास कर रहे हैं कि ओके, इंटरनली व्हाट ऑल यू नो लेट्स से पॉजिटिविटी यू हैव, जिसको एक सही डायरेक्शन में चैनल किया जा सकता है, स्पेशली फॉर योर ओन ग्रुप. अब इसका सिंपलेस्ट ऑफ तरीका अगर मैं बताऊं, जो सिंपलेस्ट ऑफ तरीका होता है अपने आप को मोटिवेटेड रखने का, मॉरल वैल्यूज को याद रखने का. अब मॉरल वैल्यूज यहाँ पे क्या आ गई, इस बात पे भी ध्यान दीजिएगा. ये वो जो ट्रेडिशनल संस्कारों की बात होती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ अच्छे से रहिए, सबके साथ काइंडली रहिए, सबको अप्रिशिएट करिए. रिमेंबर दैट, ये आपको याद रखना जरूरी है. बट एक इसका दूसरा पहलू है जो कि मैं अपने सेशंस में हमेशा कोट करता हूँ कि संस्कारों की जब हम लोग बात कहते हैं,
तो संस्कार हमको क्या बताते हैं कि आपको दुनिया के साथ बहुत ही अच्छे से रहना है, आपको अपने दोस्तों को एनकरेज करना है, आपको अपने परिवार वालों के साथ काइंडली और रिस्पेक्टफुली बात करनी है। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है सबके लिए, जब बात आती है इंटरनल मोटिवेशन को बिल्डअप करने की भी और मॉरल वैल्यूज को बिल्डअप करने की, अपनी तरफ वो अप्रिसिएशन आना भी उतना ही जरूरी है, अपनी तरफ वो एनकरेजमेंट आना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपके संस्कार आपको बताते हैं कि आपको दुनिया के साथ बहुत ही एनकरेजिंग और अप्रिशिएटिव तरीके से रहना है, तो वो आपको ये भी बताते हैं कि अपने साथ भी बहुत ही एनकरेजिंग और अप्रिशिएटिव तरीके से रहना जरूरी है। फिर से हम लोग वही एग्जाम्पल लेते हैं कि इवन ऑन अ डे व्हेन यू आर फीलिंग टायर्ड, आप जिम जाते हैं, आप फुल एफिशिएंसी में नहीं कर पाते काम, मैं तो कह रहा हूँ फुल एफिशिएंसी आप वर्कआउट कर ही नहीं पाते, यूजुअली यू गो देयर फॉर 45 मिनट्स, उस दिन आप सिर्फ 25 मिनट में ही वापस आ जाते हैं, बिकॉज यू एक्चुअली फील दैट टायर्ड, यू एक्चुअली फील दैट सोर। बट व्हेन यू कम बैक टू योर होम एंड व्हेन यू ले इन योर बेड, उस मोमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉन्स्टेंटली खुद को डिस्करेज कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली खुद को ही बिलिटल कर रहे हैं कि अरे यार बताओ तुमसे 25 मिनट में ही आ गए, आज तो कुछ कर ही नहीं पाए। इट शुड नॉट बी दैट, इट हैज टू बी ऑन द अदर साइड ऑफ इट। ठीक है, आज शायद सिर्फ 25 मिनट ही कर पाए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट किया तो ना। मन नहीं कर रहा था जिम जाके एक्सरसाइज करने का, बट गए तो एटलीस्ट कुछ तो किया। चलो अब कल बेहतर करते हैं, चलो अब कल ट्राई करेंगे इससे बेहतर करने का। अब इसमें होता क्या है कि यू आर बेसिकली बिकमिंग अ फ्रेंड ऑफ योर्स, एक ऐसा फ्रेंड जो कि कॉन्स्टेंटली आपके साथ है। बिकॉज सिंपल सी बात ये है, शायद आपके दोस्त आपको अप्रिशिएट करते होंगे, आपको मोटिवेट करते होंगे, बट क्या आपके वो स्कूल के और कॉलेज के दोस्त 24/7 आपके साथ रहते हैं आपको अप्रिशिएट और मोटिवेट करने को? चांसेस आर दैट दे आर नॉट इन दैट वे, ना ही आप उनके साथ हैं। इवेंचुअली हर कोई अपने साथ ही होता है 24 घंटे। सो ट्राई टू बिकम दैट एनकरेजिंग वॉइस, दैट एनकरेजिंग फ्रेंड ऑफ योर्स, जो कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करता है कि ठीक है, आज जितना कर पाए, आई अप्रिशिएट दैट, आई अपलॉड दैट, अब कल इससे बेहतर करेंगे, अब कल डेफिनेटली एफर्ट लगाएंगे इससे बेहतर करने का और आगे बढ़ने का। बिकॉज व्हेन यू अप्रिशिएट योरसेल्फ इन दैट मैनर, इट डेफिनेटली बिकम्स दैट इंटरनल मोटिवेटिंग फोर्स एज वेल। राइट, आई मीन जो चीज आपने ये बात कही कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ दिन भर नहीं रह सकते हो, आप अपने साथ ही रहते हो, एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू बी कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ। सो ये चीज स्टूडेंट्स में स्पेसिफिकली स्कूल के बाद काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि क्योंकि आसपास में वो हॉस्टल्स में, पीजीज में, तो इतने सारे दोस्त एंड सारे लोग आसपास है, तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करना काफी कम हो जाता है। एंड देन इफ दे आर अलोन, दे आर वाचिंग मूवीज एंड दे आर लिसनिंग टू सॉन्ग्स, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रहे, खाली बैठ करके कुछ भी नहीं कर रहे, ये वाला फेज काफी कम हो जाता है। एब्सोल्युटली। सो दिस इज समथिंग जो कि आई थिंक जो भी ये भी लिसनर्स है यहाँ पे, काफी उनको इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा होगा, एंड या दिस वुड डेफिनेटली हेल्प, राइट? सो so let's discuss something on like I was just going through a LinkedIn, and I just saw कि हाँ, you also worked as a radio jockey, right? So Yeah. I that I felt कि हाँ, I want to ask something. Just tell us about an instance while you were working over there, which you still remember and you think कि that is something special Sure. from those 1 or 2 years which I worked as a jockey. So just tell something about that. So I worked for this international radio platform by HLI Foundation, जो कि एक सोशल वेलफेयर प्लेटफॉर्म है, सोसाइटी के वेलफेयर और चैरिटेबल वर्क्स पे काम करती है। तो उनका एक इंटरनेशनल रेडियो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आई वर्क फॉर लाइक about a year or so, 12 months, 11 months it might have been. And even there जो मेरे रेडियो शोज होते थे वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते थे, because I used to focus on the fact कि जो यंगस्टर्स हैं उनको विजय पथ पे कैसे आगे बढ़ाया जाए। जो टॉपिक ही मेरे शो का रहता था उसका टाइटल था विजय पथ। अब कैसे जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी जिंदगी में एक सही रास्ता ढूंढ सकते हैं, सही डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं और उस पर आगे बढ़ सकते हैं, which by the way very interestingly isn't just about the career actually। वो सिर्फ और सिर्फ करियर को लेके नहीं, बट वो आपकी फिजिकल वेलबींग, वो आपकी मेंटल वेलबींग, वो आपके कह सकते हैं क्रिएटिव वेलबींग और इंटरेस्ट, आपके पैशंस, एम्बिशंस, एंजाइटीज और नर्वसनेस को डील करना, इन सभी बातों को इनकैप्सुलेट करती है वो जर्नी बेसिकली। तो इसी को लेकर मेरे शोज वहां पर होते थे। एंड ऑफ कोर्स दीज आर द टॉपिक्स जिनके बारे में मैं अपने सेशंस और वर्कशॉप्स में भी बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर करता हूँ, बिकॉज मेरा गोल हमेशा ये होता है कि मैं एक अगर एग्जाम्पल आपको बताऊं, कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके मैं जब भी मास्टर क्लास डिलीवर करता हूं तो मैं हमेशा अपने ऑडियंसेस को बता देता हूं कि ठीक है, एजेंडा यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का है, बट मैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करूंगा,
मैं आपके क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग स्किल पे भी काम करूंगा, मैं आपकी जो बहुत ही छुपे हुए एंजाइटीज हैं, जो डर है, उनको भी फिगर आउट करके उनको भी सॉल्व करने को लेकर आपको गाइड करूंगा, मेंटोर करूंगा। अब इसका कारण क्या होता है? अगर मैं कॉर्पोरेट वर्कर्स को मेंटोर कर रहा हूँ जो कि लेट्स से 20 या 30 ईयर्स से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और मैं उनसे जाके कह रहा हूँ कि मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाऊंगा, इवन दो आपने सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के ही कोर्स के लिए एनरोल किया है, दैट इज द मास्टर क्लास दैट यू हैव एनरोल्ड फॉर, दैट यू हैव पेड फॉर। तो ये क्यों होता है? ये मैं इसलिए कहता हूँ, ये मैं इसलिए हमेशा एम करता हूँ या इसका एजेंडा रखता हूँ अपनी सारी ही वर्कशॉप्स और मास्टर क्लासेस या सेशन इन शोज में, क्योंकि इवेंचुअली हम इस बात को भूल जाते हैं कि इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ऑन वन थिंग आपको 10 और चीजों पे काम करना जरूरी होता है। अगर आपको अपने स्टोरी टेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करना पड़ेगा, आपको स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप करनी पड़ेगी, विच साउंड्स वियर्ड, क्योंकि एक ऑथर को जिसको सिर्फ लिखना है बैठ के, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या जरूरत है? बट इन रियलिटी दैट इज द केस। इन ऑर्डर टू कॉन्फिडेंटली बी एबल टू प्रेजेंट योर स्टोरीज, नॉट फील शाय, जब आपसे कहा जाए कि अपनी स्टोरी की थोड़ी सी सिनॉप्सिस बताओ, इट वर्क्स आउट, इट प्लेज अ ह्यूज रोल। एक स्टूडेंट जिसकी जर्नी ही बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम्स को निकाल के एक अच्छी सी जॉब को बैक करना है, उसके लिए क्या जरूरत है अपने सॉफ्ट स्किल या स्पीकिंग स्किल्स पे काम करने की, राइट? दे डोंट इवन हैव द टाइम फॉर इट। बट इन रियलिटी चीज तो यही है ना कि आप सोच रहे हो कि सिर्फ एक ही चीज पे काम करना है, विच इज द स्टडीज, विच इज द स्कोर, विच इज द एकेडमिक्स, बट ये स्कोर 99% लाने के बाद भी इवेंचुअली आपको जॉब इंटरव्यूज के लिए भी जाना है, आपको ग्रुप डिस्कशंस के लिए भी जाना है, आपको कंपनी में एक पब्लिक स्फेयर में काम करना है, वहां पे तो ये स्किल्स की जरूरत होगी, वहां पे इवन आपको स्टोरी टेलिंग स्किल्स तक की जरूरत होगी कि आप एक कहानी को अच्छे से बता पा रहे हैं, अपनी जिंदगी की कहानी को अच्छे से बता पा रहे हैं। माई पॉइंट इज things are always connected when we are talking about topics like upskilling yourself or improving your skill sets or improving your personality as a whole, क्योंकि जब personality as a whole को improve करने की बात आती है तो वहां पे सिर्फ एक नहीं बल्कि multiple avenues पे काम करना जरूरी होता है। So that is what I always encourage the youngsters to be very much aware of and focused on as well. Right. Okay. So I think maybe let's switch. Let's tell our audiences कि अगर किसी को कुछ doubt है, कुछ भी पूछना हो, meanwhile you can write it in the chat box, right? So feel free to ask. Like I think we have one question. Cool. So yes, let's discuss the last point, and then we'll sort of wait for the audience if they want to ask something. Right. So so you have written 2 books, right? And while you were writing, I have written 5 books actually. 5 books. okay, my bad. Okay, yeah, so you have written 5 books, and so I think as an author you have to deal with multiple challenges कि आपको पहले स्टोरी लाइन होती है, मतलब I don't know exactly क्या क्या चीजें होती है, बट बहुत सारे elements involved होते होंगे. So what actually you learned while writing those 5 books जो कि आपको real life में काफी help हो रहा है जिसकी वजह से, so any particular relation between these two things? I mean हर बुक का ही अलग बिल्कुल एक जर्नी रहता है, I have to say हर बुक के लेसन्स अलग होते हैं, और ये मैं थोड़ा और एक वाइडर सेंस में कहना चाहूंगा कि हर प्रोजेक्ट के भी जो लेसन्स होते हैं, जो कह सकते हैं एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट व्हेनेवर आई एम वर्किंग ऑन अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट। एक तो मेरा हमेशा ये माइंडसेट होता है कि व्हेन आई एम वर्किंग ऑन अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट दैट बिकम्स माय सेंटर ऑफ फोकस एंटायरली, दैट बिकम्स माय फूड, दैट बिकम्स माय स्लीप, दैट बिकम्स माय ब्रेथ इन एवरीथिंग। तो उसी फोकस के साथ मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। So of course I become very invested in every creative project that I work on. Of course ऐसा भी होता है कि जब एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल होराइजन्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट इन द सेंस दैट इट अलाउज यू to become very introspective, to become very focused on the fact कि okay, this is the message that you are conveying to the audiences. How do you feel about it? What kind of an opinion do you have about it? जैसे कि मुझे बहुत अच्छे से याद है, अगर मैं पैंडेमिक 2020 की बात करूं, which was as I said the first fiction novel on the coronavirus outbreak. अब इसकी जर्नी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैंने इस किताब को लिखना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। आप सबको याद होगा जो नहीं, एक जनता लॉकडाउन वाला पीरियड बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था, जनता लॉकडाउन पीरियड जिसमें कि कहा गया था कि 21 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है, उसके बाद एवरीथिंग विल ओपन।
that period जब everybody was kind of having a fun with the pandemic, not actually but in some sense कि कुछ exciting सा है, कुछ out of the box and unconventional सा है. 21 दिन की तो बात है, उसके बाद तो फिर रोड पार्क सब जगह घूमना शुरू कर देंगे. Little did we know, of course. My point is कि उस समय of course things were happening around the world on a much larger scale. India में they were just starting out, so we had an idea of it. And suddenly सारे न्यूज प्लेटफॉर्म्स पे सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के बारे में ही रिले हो रहा था, एंड द डेथ्स, द सफरिंग्स एंड व्हाट नॉट. तो मैं उसको कॉन्स्टेंटली रिसर्च कर रहा था. अब दो जो इंटरेस्टिंग बातें मुझे उस जर्नी की हमेशा याद रहती, जिनको मैं हमेशा ही कोट करता हूँ, वो ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज थी कि वो इतनी रोलर कोस्टर से एक राइड बन गई थी वो एक महीना पैंडेमिक 2020 को लिखने का. बिकॉज होता ऐसा था कि सुबह के टाइम पे आई वाज रिसर्चिंग अबाउट दी things in regards to COVID-19, the deaths, the sufferings, medical workers, putting their life on the forefront to save others and whatnot. बहुत ही horrendous कहानी, बहुत ही डरावनी and even at times genuinely serious कहानी है जिनको मैं research कर रहा था in the daytime. Then in the afternoon and in the evening, I'm delivering motivational talks and sessions, talking about positivity, talking about joy, talking about everything joyous and happy. Then at night time, मैं उन्हीं डिफिकल्ट कहानियों को लिख रहा था ऑन पेपर. सो इट वाज सच अ रोलर कोस्टर राइड, इट वाज सच अ कर्व जो कि साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा मैं कहूंगा मेमोरेबल एक्सपीरियंस बन गया था. एंड देन ऑफ कोर्स एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई थी वो ये थी कि इस किताब को व्हेन यू रीड इट आपको समझ में आएगा कि दिस इज एक्चुअली अ वेरी हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ एवरीथिंग दैट वेंट डाउन. यानी कि हर एक स्टैटिस्टिकल डेटा, हर एक इंसिडेंट और इवेंट जो कि हम लोग को दुनिया भर में देखने को मिला था उस इनिशियल फेज ऑफ कोविड-19 में, आई हैव मेड अ मेंशन ऑफ इट इन द बुक. इट इज वेरी मच सेट इन द रियल सेटिंग विद द रियल वर्ल्ड, बस कैरेक्टर्स जो हैं वो काल्पनिक हैं. सो इन एनी केस इस बुक को लिखने का एक बहुत ही चैलेंजिंग फैक्टर ये था कि एवरी सिंगल डे आई वाज अपडेटिंग द स्टोरी ऑफ इट. यानी कि चैप्टर 20 पे होते हुए भी आई हैड टू कम बैक ऑन चैप्टर 1 ऑन डे 30th, बिकॉज उसमें से कुछ एडिट करने की जरूरत आ गई, बिकॉज दुनिया में न्यूज में कुछ एक नई बात आ गई थी, समथिंग एल्स हैपेंड, एंड सो द स्टोरी हैड टू बी अपडेटेड अबाउट इट कॉन्स्टेंटली. सो जनरली क्या होता है कि इफ आई एम वर्किंग ऑन अ स्टोरी, या जनरली अगर कोई भी किताब लिख रहा होता है, तो रिसर्चिंग प्रोसेस बिकम्स वेरी स्पेसिफिक. यू रिसर्च अबाउट इट, देन यू राइट अबाउट इट. इस बुक को लिखना काफी चैलेंजिंग हुआ था बिकॉज आई वॉज रिसर्चिंग अबाउट इट वाइल आई वॉज राइटिंग अबाउट इट. तो वो जो constant research and constant writing and the amalgamation of it on regular basis, that was a fun experience certainly, and something which I as an author and as a storyteller learned a lot from, जिसको मैं of course अपने सारे ही creative projects में आगे भी carry forward करता हूँ. ओके यार, मतलब आपने इस चीज को काफी अच्छी तरह से बताया एक प्रॉपर स्टोरी के फॉर्म में. तो आई वाज फीलिंग सॉर्ट ऑफ कि हाँ, मैं सुबह उठ रहा हूँ, मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, एंड देन मैं रात में उसको लिख रहा हूँ. सो आई थिंक ऑडियंस से जो भी, उनको भी काफी ज्यादा रिलेटेबल लग रहा होगा ये चीज की, खुद को फील कर पा रहे होंगे. राइट. सो ग्रेट. सो लेट्स मे बी इफ again I'm saying, जो भी those who are right now and present in live, if you have any doubt you can ask. I think we have one question. Muhammad Sharif is asking the name of the book. Yeah, so the name of the book is Pandemic 2020 Rise of the Virus, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे. Apart from that, I have also written other books like A Celebration in Tribulation and my recent international bestseller book, जो कि है The Blisters of the Battle, which has become an instant bestseller on Amazon on the very day of its release. Okay, I think Sharif, you can note it down. And yeah, so anyone else, if you want to ask some question, right? So you can basically ask it right now. Meanwhile, Yash, maybe just tell, like, for those who are present in the live, any piece of advice for all this, because most of the members in the community are these college students, and so anything you want to just tell them on the last note. Yeah, so there is this one thing जो कि मैं अपने हर सेशन के कंक्लूजन में जरूर कहता हूँ आफ्टर द एंटायर कन्वर्सेशन. हर सेशन, हर वर्कशॉप में एंड में एक बात मैं जरूर कहता हूँ, स्पेशली टू द यंगस्टर्स, बिकॉज उनके लिए ज्यादा जरूरी है, which can sound a bit philosophical because it is philosophical, but इसको एक अपनी टेक्निकल आई से भी आप लोग देखिए, इसको अपने IITs, IIMs के पर्सपेक्टिव से भी आप देखिए. ड्रीमिंग बिग and working hard, no matter what the odds are, is the way to go about it. Once again, it sounds philosophical, बहुत ही कोटेशन जैसी ये बात सुनाई देती है, but reality में जो हम लोग
सेशन के स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि कुछ अनकन्वेंशनल करना, इवन एक कम उम्र में कुछ बहुत ही बड़ा करना, that requires for one to dream big, that requires for one to tell themselves कि कर सकते हैं यार. See, my ideology always is, और ये हमेशा ही मेरी आइडियोलॉजी रहेगी कि ठीक है, आज इस बड़े प्रोजेक्ट पे काम किया, everybody is loving it, कल मुझे इससे भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है. आज I communicated on this platform, कल मुझे इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म पे बात करना है और इससे भी बड़ी ऑडियंस को एड्रेस और मेंटोर करना है. That sort of a positive, appreciative, encouraging and I would say ambitious mindset is very much required. वो of course आपका अपना वर्जन होगा इन बातों को लेके, आपके गोल अपने होंगे, आपके ambitions अपने होंगे, but allowing yourself to be ambitious is very important. It is very needed. ये एक छोटे से आपके कॉलेज के मिड सेम के एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े जिंदगी के गोल, बड़े से बड़े जिंदगी के करियर एवेन्यू हर जगह पे बहुत ही जरूरी होता है. So allow yourself to do that, allow yourself to dream big, allow yourself to work hard as well, and most importantly अपने आप को अप्रिशिएट करो यार, अपने आप के साथ भी थोड़ा काइंड हो. आप अपने दोस्तों को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, अपने दोस्तों की तरफ बहुत ही काइंडनेस के साथ बात करते हैं, उतना ही काइंडली, उतना ही अप्रिशिएटिव तरीके से अपनी तरफ होना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है. Great, great. Yeah, thank you so much, Yash. I think the session was quite wonderful. काफी ज़्यादा कुछ aspects हमने काफी deep में बात की, and this would definitely help those who are present in the live. And yeah, I would also like to thank the audience. I think thank you so much for being at the live. And yeah, so we are almost done with the live. Again, Yash, thank you so much for joining on behalf of Financially Aware Bharat. Right. So let's meet again, and I think we'll have more lives in the future. Right. So Certainly, yeah, certainly. we can connect again. Yeah. Okay. Chalo. Thank you Thank you so so much. Yes. Thank you. Thank you. Bye. See Right. you all soon again. Bye bye. Yeah.